خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں سمرین ناز۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ 21 ماہ بعد پہلی تا 7ویں جماعت کے اسکولوں میں لوٹ آئی رونق۔ اسکول کے آغاز پر طلبہ کا پھول اور یونیفارم دے کر کیا گیا استقبال، سرپرستوں نے کیا اطمینان کا اظہار۔ MGM سے متصل بنائی جا رہی آجہانی باڑا صاحب ٹھاکرے کی قومی یادگار کے احاطے میں کی گئی شجرکاری، مراٹھی فلم اداکاروں کی موجودگی میں ادا کی بیج طلوع کی رسم، فلم ایکٹرز نے شہریان کو دیے نیک پیغامات۔ دنیا بھر میں دہشت پھیلانے والے کورونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون نے اورنگ آباد میں دے دی دستک، ہوائی سفر کر کے ممبئی پہنچنے والا اورنگ آباد شہری اومیکرون کے لیے پایا گیا پازیٹیو، ہیلتھ انتظامیہ کی اڑا دی نیند۔ اور بیل گاڑی دوڑ اور مقابلوں کے لیے سپریم کورٹ نے دی مشروط اجازت، تعلقہ سلوڑ کے دیہی مقامات پر شائقین اور کسانوں نے منایا جشن۔ اب خبریں تفصیل سے۔ 21 ماہ بعد پھر سے شہر میں موجود سبھی خانگی اور میونسپل اسکولوں کی رونق لوٹ آئی، جہاں اسکول کے پہلے دن طلبہ میں یونیفارم اور پھول دے کر ان کا استقبال کیا گیا۔ واضح رہے کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے پیش نظر مارچ 2020 سے سبھی تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے تھے۔ گزشتہ ماہ شہر بھر میں 8ویں تا 12ویں جماعت کے اسکول شروع کر دیے گئے تھے، جبکہ شہری حدود میں پہلی تا 7ویں اور دیہی مقامات پر پہلی تا 5ویں جماعت کے اسکول 5 دسمبر سے شروع کرنے کا اعلان ریاستی حکومت نے کیا تھا، مگر کورونا حالات کا جائزہ لینے کے بعد اسکول شروع کرنے سے متعلق قطعی فیصلے لینے کا اختیار شہری حدود میں میونسپل انتظامیہ اور دیہی مقامات کے لیے ضلع انتظامیہ کو دیا گیا تھا۔ ضلع انتظامیہ نے 5 دسمبر سے دیہی مقامات پر اسکول شروع کرنے کی اجازت دے دی تھی، مگر میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے 10 دسمبر اور پھر 15 دسمبر تک اسکول شروع کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ کورونا حالات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد 20 دسمبر سے شہری حدود میں اسکول شروع کرنے کے لیے گرین سگنل دیا گیا تھا، اور میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے کی ہدایت کے بعد 21 ماہ بعد آج سے شہری حدود میں موجود خانگی اور میونسپل اسکولوں میں گھنٹیوں کی آواز گونجنے لگی۔ سرپرست بھی اپنے بچوں کو خوشی خوشی لے آئے، جہاں اسکول انتظامیہ کی جانب سے ان کا پرطبق استقبال کیا گیا۔ اسکول کے پہلے دن طلبہ میں یونیفارم اور پھول تقسیم کیے گئے اور کھیل کود کے ساتھ انہیں تعلیم دی گئی۔ गायत्री मनोज जाधव आहे। मला आज शाळेत आल्यावर खूप मस्त वाटते। माझ्या सगळ्या शाळेतल्या टीचर्सला आणि माझ्या फ्रेंड्सला भेटले, मला खूप मस्त वाटते। खूप वर्षानंतर अभ्यास झालाय माझा, मला खूप मस्त वाटते आणि रोजच अशी शाळा सुरू राहावं। बहुत दिन से स्कूल बंद थी, मुझे आज स्कूल चालू हुई तो मुझे मेरे दोस्तों से मिलने से मिस से मिलना, फिर आज स्कूल शुरू हुई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज पढ़ाई भी बहुत दिनों के बाद हो रही है, या फिर ऑनलाइन ही जब से पढ़ाई थी, पर अब बहुत दिनों के बाद पढ़ाई चालू हुई। मैं स्कूल को बहुत मिस कर रहा था, अब स्कूल चालू हो गई तो फिर अब रेगुलर ही स्कूल चालू होना चाहिए, फिर हम स्कूल रेगुलर आएंगे। ते किती दिवस झाले ते शाळा आमच्या बंदच होत्या, तर मग आज शाळेत आलं तर आम्हाला चांगलं वाटतं। MGM से करीब मौजूद गार्डन में शिवसेना पार्टी के बानी आजहानी बाला साहब ठाकरे की यादगार बनाई जा रही है, जहां आज मराठी फिल्म अदाकारों की मौजूदगी में बीज तोले गए और शजरकारी की गई। واضح رہے کہ MGM سے متصل گارڈن میں شیوسینا پارٹی کے بانی صدر آجہانی بالا صاحب ٹھاکرے کی قومی یادگار بنائی جا رہی ہے، مگر یہ معاملہ عدالت تک جا پہنچا تھا اور فاضل عدالت نے حکم دیا کہ یادگار کی تعمیر کے دوران وہاں موجود درختوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، جس کے بعد میونسپل انتظامیہ نے وہاں نئے 5000 پودے لگانے کا عزم کیا، جس کے تحت آج یہاں بیج طلوع کی رسم کا اہتمام کیا گیا اور مراٹھی فلم اداکار سیاجی راؤ شندے، مکرند انس پورے، اروند جگتاپ کی موجودگی
आलूदगी में शजरकारी की गई। फिल्मी अंदाज में यहाँ ढोल ताशे बजाते हुए मेहमानान पहुंचे, जिनका म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे और दीगर अफसरान ने शायान शान इस्तकबाल किया। इसके बाद बीज तोड़ने की रस्म अदा की गई और फिर यहाँ शजरकारी की गई। इस मौके पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े मेहमानों ने अवाम को दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ करके माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए चलाई जा रही मुहिम का हिस्सा बनने का मशवरा दिया। आज आमचा 71वा वाढदिवस साजरा करताना विशेष आनंद होतोय आणि त्याचा वाढदिवस साजरा करताना बीज तुला केलेली आहे त्यांची महाराष्ट्रातल्या 80 प्रकारच्या प्रजातीच्या देशी बिया महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या ठिकाणावरून आलेल्या आहेत आणि त्या बीज तुलांनी त्यांचा वाढदिवस साजरा केला। असे वाढदिवस साजरे व्हावे की एका बीजा 100 बिया 100च्या हजारोच्या करोडो झाडं तयार होणार आणि आपल्या जीवापाड आपल्या आई वडिलांवर प्रेम असतं ते प्रेम व्यक्त करण्यासाठी झाडं लावावी। मग त्या झाडाच्या रूपातनं, सुगंधाच्या रूपातनं, फळाच्या रूपातनं, सावलीच्या रूपातनं पशुपक्ष्यांना उपयोगी होणारी झाडं ही लावावी अशी ती संकल्पना आहे। त्यानिमित्तानं अशा वेगवेगळे बीजतुला व्हाव्यात आणि असे वाढदिवसाचे कार्यक्रम व्हावेत अशी अपेक्षा आहे आणि त्यानिमित्तानं अरविंद जगताप यांचे वडील लक्ष्मणराव जगताप त्यांच्या वाढदिवसात साजरा केला गेला बीजतुला। वृक्ष लावणं, वाढवणं, जपणं, त्याचे वाढदिवस करणं ही एक आनंदाची गोष्ट आहे आणि जगात श्रीमंत म्हणजे ऑक्सिजन असतो। आपण छान श्वास भरून मिळाला की आपल्याला आनंद होतो आणि जगात इतका एवढा सहज आनंद दुसरं कोणी देत नाही, झाडापासून मिळतं। तर एक आनंद म्हणून हे आहे। चळवळ किती व्हावी, किती करावं, मला असं वाटतं की प्रत्येक माणसाला ऑक्सिजनची गरज असते, अन्न पाण्याची गरज असते। जगात एवढीच जादू झाडाला येते, बाकी कोणावर दुसरी जादू येत नाही। मला वाटतं की आपण फळं रोण फेडायचे असतील तर ते झाडाचं फेडले पाहिजेत आणि आपल्या वया इतकी तरी झाडं लावता आली पाहिजेत, जगवता आली पाहिजेत, वाढवता आली पाहिजेत आणि आपण वाढदिवस आपल्या मुलांचे, आईवडिलांचे करतो तसेच झाडांचे पण वाढदिवस करायला पाहिजे। दुनिया भर में दहशत फैलाने वाले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक औरंगाबाद में सुनाई देने लगी, जिसके बाद हेल्थ इंतजामिया चाको चौबंद हो गया है। नाजरीन, आज ये खबर आम हुई कि रियासत महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से मुतासिर नए 6 मरीज़ पाए गए हैं, जिनमें से एक मरीज़ का ताल्लुक़ औरंगाबाद से बताया जा रहा है, जो बज़रिए तैयारा औरंगाबाद से मुंबई पहुंचा था, जिसकी रिपोर्ट ओमिक्रॉन के लिए पॉजिटिव आई है। जिसके बाद हेल्थ इंतजामिया अलर्ट हो गया है और वो मरीज़ जिन लोगों के राब्ते में था और उसके अफराद ख़ानदान को क्वारंटाइन कर दिया गया है, जबकि ये मरीज़ मुंबई के 7 हिल हॉस्पिटल में क्वारंटाइन किया गया है। ज़राए का कहना है कि मरीज़ ने कोरोना से बचाव के दोनों टीके लिए हुए हैं, इसलिए इसकी हालत बेहतर है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से औरंगाबाद समेत इलाक़े मराठवाड़ा में कोरोना से मुतासिर मरीज़ों की तादाद बतदरीज घटती दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता रोज़ इलाक़े मराठवाड़ा के 8 अज़ला में कोरोना से मुतासिर सिर्फ 12 नए मरीज़ पाए गए। इसी तरह खुश आइन बात ये भी है कि एक भी मरीज़ की मौत नहीं हुई। इसके बावजूद मुंबई में ओमिक्रॉन से मुतासिर जो मरीज़ पाया गया, इसका ताल्लुक़ औरंगाबाद से होने के सबब इंतज़ामिया की नींद उड़ गई है। बैलगाड़ियों की रेस को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मशरूत इजाज़त दिए जाने के बाद बैलगाड़ी प्रेमियों और किसानों ने बोरगांव बाजार सिल्लोड़ में जश्न मनाया। आयार है कि मुल्क भर बैलगाड़ियों की रेस व मुकाबलों पर मरकज़ी हुकूमत ने साल 2017 से पाबंदी आयद कर रखी थी, जिसके सबब मुतालिका मुकाबलों के इनेकाद करने वाले किसानों और शौकीन अवाम में मायूसी थी और ये खेल मुकाबले दोबारा शुरू हो सके, इस मकसद से कई मुतालिका इदारों व संगठनों की जानिब से कोशिशें जारी थीं। बाद-ए-आज़ा महाराष्ट्र हुकूमत ने इन मुकाबलों की इजाज़त दिए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की थी। समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 शराइत की पाबंदी के साथ इन बैलगाड़ी के मुकाबलों की इजाज़त दे दी। अदालत उज़्मा के इस फैसले का किसानों और बैलगाड़ी मुकाबलों के शौकीन अवाम ने इस्तकबाल किया है। तालुका सिल्लोड़ के मज़ाफ़ात बोरगांव बाजार, कोटनांद्रा, सावखेड़ा, शहर सिल्लोड़, सोनप्पावाड़ी, सातखेड़ा, धामनी, महलसा, बोरगांव, सारोनी व अतराफ व अकनाफ के शायकीन ने बोरगांव बाजार के बस स्टैंड के करीब अपने बैल जमा किए और बैलों का पूजन करके ढोलबाजों के साथ जश्न मनाया और आतिशबाजी की। इस मौके पर तंटा मुक्ति समिति के सदर दत्ता चौहान, पंचायत समिति के रुकन सत्तार बागबान, निरंजन पुरी, सद्दाम शेख, अनिल चौहान समेत सैकड़ों किसान व दीगर साकिनान मौजूद थे। एसटी मुलाजिमीन की हड़ताल के सबब एसटी बस सर्विस ठप पड़ गई है, लिहाजा मुसाफिरों की सहूलत के लिए इंतजामिया ने पूना के लिए खानगी शिवशाही बस सर्विस शुरू की है, मगर खानगी ड्राइवर्स की मनमानी के सबब मुसाफिरों को परेशानी का सामना है और 5 घंटों का सफ़र 12 घंटों में मुकम्मल हो रहा है। तफसीलात के मुताबिक
मुसाफिर गुज़िश्ता शनिचर को पूना से औरंगाबाद के लिए शिवशाही बस में सवार हुए, मगर ड्राइवर नशे में धुत था और वो वहीं चित हो गया, जिसके बाद इंतज़ामिया ने इन मुसाफिरों को दूसरी शिवशाही बस में सवार करवाया, लेकिन इस ड्राइवर ने पूना ही में 2 गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिस पर इंतज़ामिया ने इन मुसाफिरों को तीसरी गाड़ी में सवार करवाया, मगर इस ड्राइवर को औरंगाबाद का रास्ता मालूम न होने के सबब वो 2 घंटों तक पूना की सड़क पर ही गाड़ी दौड़ाता रहा और पूना से औरंगाबाद का सफ़र 5 घंटों में पूरा होने की बजाय मुसाफिर 12 घंटों बाद अपनी मंजिल पर पहुंच पाए। औरंगाबाद शहर कांग्रेस पार्टी के ओबीसी सेल का एक वक्त आज इलाकाई कमिश्नरेट पहुंचा और एक मेमोरेंडम इलाकाई इंतजामिया के सुपुर्द करते हुए हुकूमत व इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि जब तक ओबीसी समाज का सियासी रिजर्वेशन बहाल नहीं किया जाता तब तक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला परिषद और दीगर कोई भी इलेक्शन न लिए जाए। वफ्द में आए अफराद ने मेमोरेंडम के जरिए इलाकाई कमिश्नर को बताया कि 15 दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके लिए मरकज़ी हुकूमत जिम्मेदार है, जिसने एम्पेरिकल डाटा होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं किया और गुमराहकुन बयान देकर न सिर्फ ओबीसी अवाम बल्कि फाजिल अदालत की भी तौहीन की है। उन लोगों ने मुतालबा किया कि मरकज़ी हुकूमत फौरी एम्पेरिकल डाटा अदालत में पेश करे और लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के लिए ओबीसी समाज का 27% रिजर्वेशन बहाल करे, तब तक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला परिषद और दीगर कोई इलेक्शन न लिए जाए। बसूरत दिगर जमहूरी तर्ज पर अवामी तहरीक चलाई जाएगी। इस वक्त ने दर्शन सिंह मलके, आतिश पितले, पंकज वाड़ीकर, बाबूराव कोसकर, औरंगाबाद शहर कांग्रेस कमेटी ओबीसी सेल के दीगर अहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। आज हमने ओबीसी विभाग की तरफ से एम्पेरिकल डाटा ये केंद्र सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जल्दी से जल्दी देना, जिससे ओबीसी पे जितना भी पूरे देश में ओबीसी को ख़त्म किया जा रहा है और ओबीसी को जो उनका राजकीय आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है, इसके माध्यम से हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज यहाँ पर डिविजनल कमिश्नर साहब को निवेदन दिया है और जल्दी से जल्दी अगर ये एम्पेरिकल डाटा राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय को देना चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में जो इलेक्शन है इसमें ओबीसी को जगह मिलना चाहिए, राजकीय आरक्षण मिलना चाहिए और हमारा कोई भी आरक्षण ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये हमारी लोकशाही मार्ग से हमारी मांग है और हम इस मांग को लोकशाही मार्ग से मांगना चाह रहे हैं, जिससे आगे चल के कोई भी परिस्थिति उद्भवे ना और परिस्थिति को कहीं गंभीरता से ना लें, इसलिए हम लोकशाही मार्ग से जाना चाह रहे हैं और पूरे ही महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ओबीसी विभाग की तरफ से और पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम हमारी मांग लोकशाही मार्ग से मांग रहे कि हमारा राजकीय आरक्षण 27% जो है कायम रखा जाए। एलोरा में मौजूद संत जनार्दन स्वामी स्कूल में तालुका सतह पर तलबा के दरमियान खो-खो एजुकेशन मुकाबले रखे गए। संत जनार्दन महाराज की 32वीं बरसी की मुनासिबत से उनके नाम पर चलाए जाने वाले स्कूल में तलबा के दरमियान तालुका सतह पर रखे गए खो-खो और तकरीरी मुकाबलों का इफ्तिताम मेहमानों के हाथों किया गया। जय हनुमान धर्म संस्कार सोहड़ा के सदर राजेंद्र पवार की सदारत में मुनक़िदा इस इफ्तिताही तकरीब में संत अरवी मुक्तेश्वर आनंदगिरी महाराज, एकनाथ दादा होलकर, राजू चौहान, जगन्नाथ उगले, मनोहर गावड़े मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे, जिनके हाथों संत जनार्दन महाराज की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। तकरीरी मुकाबलों के लिए मुख्तलिफ ग्रुप बनाए गए। प्राइमरी ग्रुप में समंत भद्र विद्या मंदिर की तालिबा समीक्षा संतोष शेंगरे ने अव्वल मकाम हासिल किया, जबकि दूसरे इनाम के लिए संत जनार्दन स्वामी स्कूल के तालिब इल्म देवदत्त थोरात अहले करार दिए गए। तीसरा इनाम टुंकी गुरुकुल की अपेक्षा बंडू गोरे ने हासिल किया, जबकि सेकेंडरी स्कूल ग्रुप में शिव प्रसाद कदम, श्रुति प्रकाश जातोड़े और रोहित नाना साहब झंझोरडे बिलतरतीब अव्वल, दुवम और सुवम इनामात के लिए हकदार करार दिए गए। सचिन लातूरे, प्रिंसिपल मनोरमा ताले और वाकड़े गुरुजी ने ज्यूरी के फ़राइज़ अंजाम दिए। राष्ट्रीय संत गाड़गे महाराज की बरसी पर तालुका सोयगांव की घोसला ग्राम पंचायत में एक तकरीब मुनक़िद की गई और उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। वाज़ेह रहे कि संत गाड़गे महाराज ने अपनी सारी ज़िंदगी खिदमत खल्क़ में गुजार दी और अवाम में सफाई से मुतालिक बेदारी पैदा करते रहे। आज उनकी बरसी के मौके पर तालुका सोयगांव की घोसला ग्राम पंचायत में एक तकरीब मुनक़िद की गई, जहां उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उनकी तालीमात को याद किया गया। इस मौके पर हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए नायब सरपंच सुभाष पाटिल और ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि उन लोगों ने गाड़गे महाराज से तरकीब पाकर समाजी खिदमत का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि गाड़गे महाराज ने शहरियान को न सिर्फ अपने अतराफ़ का माहौल साफ़ सुथरा रखने का मशवरा दिया, बल्कि उनका कहना था कि वक्त बहुत कीमती है, उसे बेकार के कामों में ज़ाय ना किया जाए।
अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाए, क्योंकि तालीम की बदौलत इंसान अच्छे बुरे की तमीज़ कर सकता है। उनका कहना था कि जो वक्त पर फतह हासिल करता है वही दुनिया को अपने कदमों में झुकाने की अहलियत रखता है। खैरात लेने के लिए हाथ ना फैलाएं, बल्कि खुद को इस काबिल बनाओ कि आप खैरात देने वाले बन जाएं। दुखों के पहाड़ चढ़ने के बगैर सुख की किरण दिखाई नहीं देती, इसलिए हालात से ना घबराए बल्कि हालात का मुकाबला करें। माँ बाप की खिदमत को अपना फर्ज अवलिन बनाएं। इस मौके पर सरपंच, नायब सरपंच और ग्राम पंचायत अराकीन के अलावा गाँव के साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। तालुका कन्नड़ खुल्दाबाद फुलंबरी की तरक्की को रफ्तार देने के लिए यहाँ से गुजर रही रियासती शाहरा को कौमी शाहरा में तब्दील करने का मुतालिबा मरकजी वजीर नितिन गडकरी से भारतीय जनता युवा मोर्चा के नायब सदर ने किया है। कन्नड़, चिकलठान, बोड़खापुनी, इंद्रपुर, बाजार सांगी के इस रास्ते को गनोरी नायगांव की कौमी शाहरा में तब्दील कर देने से मज़कूरा तीनों तालुका जात की तरक्की को रफ्तार मिलेगी। इसलिए इस रियासती शाहरा को कौमी शाहरा में तब्दील कर दिया जाए। इस तरह का मुतालिबा भाजपा की युद्ध तंजीम भारतीय जनता युवा मोर्चा के नायब सदर संदीप निकम ने मरकजी वजीर डॉक्टर भागवत कराड़ की मौजूदगी में एक मकतूब पेश करके मरकजी वजीर बराए सड़क व नकल हमल नितिन गडकरी से किया है। मकतूब में वजाहत की गई कि 40 गाँवता औरंगाबाद जालना के रास्ते को जोड़ने वाली ये कलीदी शाहरा है और इसे कौमी शाहरा बना दिया गया तो मज़कूरा 3 तालुकों की तरक्की को बढ़ावा मिलेगा और हमल व नकल की सहूलियात में इजाफा होगा। मकतूब पेश किए जाने पर इस मुतालिबे को मंजूर किए जाने का वादा नितिन गडकरी ने कर लिया है। इस तरह की जानकारी संदीप निकम ने दी है। शराब की तलब पूरी करने इसके शौकीन लोग कब क्या कर गुजरेंगे कहा नहीं जा सकता। हाल ही में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वाकया घाटी दवाखाने में पेश आया और शराब की लत पूरा करने एक शख्स ने अपने बाप की लाश घाटी दवाखाने में छोड़कर मैखाने चला गया, जिसकी वजह से रिश्तेदारों को महलूक की लाश हासिल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तफसीलात के मुताबिक बाड़ा साहब ढूंढीराम सोनोने नामी एक ज़ईफ शख्स जो फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला था घाटी दवाखाने में इलाज की गर्ज से शरीक किया गया। गुज़िश्ता शाम दौरान इलाज बाड़ा साहब ढूंढीराम की मौत हो गई, जिसे पोस्टमार्टम के लिए मरचुरी ले जाया गया और पोस्टमार्टम के बाद इसका डेथ सर्टिफिकेट इसके लड़के को सौंपा गया। लड़का शराब का आदी था, लिहाजा उसे शराब की लत सताने लगी और वो डेथ सर्टिफिकेट अपने साथ लेकर मैखाने जा पहुंचा। महलूक के रिश्तेदारों को डेथ सर्टिफिकेट के बगैर मुतालिका इंतजामिया ने इलाज देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद शराबी बेटे की तलाश शुरू कर दी गई, मगर वो कहीं नहीं मिला। आखिरकार महलूक की बेटी अपने भाई को ढूंढने दवाखाने के बाहर निकली, मगर वो कैसे मिलता। आखिर थक हार कर सब दवाखाने लौट आए और कुछ देर बाद शराबी बेटा भी वहाँ पहुँच गया और डेथ सर्टिफिकेट की जाँच के बाद मुतालिका इंतजामिया ने लाश वर्सा के सुपुर्द की। चिकलथाना सनती इलाके में मौजूद CRT मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के यौम तासीस पर स्पोर्ट्स वीक जोश व खरोश से मनाया गया। कंपनी के 57वें यौम तासीस पर मनाए गए स्पोर्ट्स वीक में वॉलीबॉल, कैरम, शतरंज, रस्सी खींच, संगीत कुर्सी और दीगर खेलों के मुकाबले मुनक़्क़द किए गए, जिसमें प्लांट के मुख्तलिफ शोबों के अलहदा टीमें बनाई गईं। स्पोर्ट्स वीक को कामयाब बनाने में डायरेक्टर प्रजक्ता कुमार की रहनुमाई में स्टाफ मेंबरान ने अहम रोल अदा किया। मुकाबलों में बेहतर कारकर्दगी अंजाम देने वाले खिलाड़ियों को कंपनी के नायब सदर अनिल कुमार ने मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर प्रणव शंकर, BK सिन्हा, RB लाड़, SS दानेकर, AK वर्मा, SD बोराटे और VR कदम मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। 21 माह बाद पहली तक 7वीं जमात के स्कूलों में लौट आई रौनक। स्कूल के आगाज पर तलबा का फूल और यूनिफॉर्म देकर किया गया इस्तकबाल। सरपरस्तों ने किया इत्मीनान का इजहार। MGM से मुत्तसिल बनाई जा रही आजहानी बाड़ा साहब ठाकरे की कौमी यादगार के अहाते में की गई शजरकारी। मराठी फिल्म अदाकारों की मौजूदगी में अदा की बीज तुला की रस्म। फिल्म एक्टर्स ने शहरियान को दिए नेक पैगामात। दुनिया भर में दहशत फैलाने वाले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने औरंगाबाद में दे दी दस्तक। हवाई सफर करके मुंबई पहुंचने वाला औरंगाबाद शहरी ओमिक्रॉन के लिए पाया गया पॉजिटिव। हेल्थ इंतजामिया की उड़ा दी नींद।
और बैलगाड़ी दौड़ और मुकाबलों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी मशरूत इजाज़त। तालुका सिल्लोड़ के देही मकामात पर शायकीन और किसानों ने मनाया जश्न। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।